অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে বাক বিতণ্ডায় অমিত শাহ কেন কেন কোথা থেকে এই বিতর্কের সূত্রপাত কি কারণে বাক বিতণ্ডা আপনাদেরকে জানাই। অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন রাহুলকে পাপ্পু বানাতে চেয়েছিল বিজেপি, উল্টে রাহুল বিজেপিকে পাপ্পু বানিয়ে দিয়েছে। এর জবাবে অমিত শাহ তিনি বলেন আপনি মাননীয় একজন সাংসদকে পাপ্পু বলতে পারেন না। এই কোথাও গিয়ে একটা দায় কিন্তু চেপে গেল অধীর রঞ্জন চৌধুরীর উপরেই। ঠিক কি হলো সংসদ একটু দেখায়। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্য শুনলেন। অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি স্পষ্টই বললেন বিজেপি চেয়েছিল রাহুল গান্ধীকে পাপ্পু বানাতে। গতকাল রাহুল গান্ধী সংসদে দাঁড়িয়ে যা বলেছেন তারই জবাবি ভাষণ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি দেবেন। কিন্তু অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি বললেন রাহুল গান্ধীকে পাপ্পু বানাতে চেয়েছিল বিজেপি, উল্টে রাহুল গান্ধী বিজেপিকে পাপ্পু বানিয়ে দিয়েছে। আর এর জবাবেই অমিত শাহ তিনি বলেন আপনি মাননীয় একজন সাংসদকে পাপ্পু বলতে পারেন না। অধীর রঞ্জন চৌধুরীর এই বক্তব্য ঘিরেই, এই পাপ্পু বিতর্ক ঘিরে ইতিমধ্যেই লোকসভায় তুঙ্গে ঝড়। কথা বলবো অনিন্দ ব্যানার্জি প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। অনিন্দ, অধীর রঞ্জন চৌধুরী যেই প্রেক্ষিতে কথাটা বলতে চাইলেন এটা তো বুমেরাং হয়ে গেল। একদমই তাই, এবং শুধু বুমেরাং হলো না, বুমেরাং করিয়ে দেওয়া হলো। এবং সম্ভবত এই জন্যই বিজেপিতে এখনও অমিত শাহকে তাদের বিজেপির চাণক্য বলা হয়। তিনি এক মুহূর্তে কীরকমভাবে বাজি ঘুরিয়ে দিতে হয় তা তিনি জানেন, এবং সম্ভবত সেই জন্যই তিনি একরকমভাবে দায় চাপিয়ে দিলেন যে যেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী তার পার্টির একজন সিনিয়র লিডার, যে এর আগে অ্যাক্টিং ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ছিলেন, গান্ধী পরিবারের একজন সদস্য, তাকে পাপ্পু বলছেন। দায়টা চাপিয়ে দিলেন একরকমভাবে অধীর রঞ্জন চৌধুরীর উপর, এবং তারপর তিনি জিনিসটাকে হালকাভাবে ঘুরিয়ে দিলেন এবং তারপরে আবার ফেরত অন্য জায়গায় গেলেন যে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে কেন গান্ধী পরিবারের নাম নেই, কেন নেহেরুর নাম নেই, কেন ইন্দিরা গান্ধীর নাম নেই। কিন্তু তিনি যেই অ্যাঙ্গেলে অ্যাটাক করছিলেন সেই অ্যাঙ্গেলের কোর্সটাকে কিন্তু তিনি বলতে দিলেন। এবং এরপরে অবশ্যই আলোচনা যেমন আমি আর তুমি করছি এখন, এবং আরও বহু মানুষ করবে আগামী কয়েক ঘন্টায়, যে কিরকমভাবে পাপ্পু শব্দটা আবারও একটু আমরা সংসদের দিকে নজর রাখি। অনিন্দ কিছু বলছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। वांगचुक उपवास करते थे, वो क्या कहे वो भी आप सुन लिया करो। अच्छा, कांचुक तेंजिन तत्कालीन भाजपा शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य, क्षेत्र के सर्वोच्च निर्वाचित संस्था, क्या कहना है कि बफर जोन के निर्माण में स्थानीय लोगों की अपने पशुओं के लिए चारागाह भूमि तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया और नहीं जा पाते हैं। दिसंबर में गैर कानूनी घुसपैठ के प्रयास में चीनी दल 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर के स्वयंभू क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों के साथ 17,000 फीट की चोटी पर अवैध रूप से कब्जा करने की दृष्टि से भिड़ गए। सेना जैसे कि बताया गया 300 से अधिक चीनी दल हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक निर्लज्ज डिजाइन के साथ आए, जिसे हमारे सशस्त्र बल की वीरता से सफलपूर्वक खदेड़ दिया था। हमारे सेना की वीरता, हमारी सेना की धीरता, या हमारी सेना के लिए हमारे अहंकार, हमारे नाच की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप बताइए खुलकर क्यों नहीं सदन में चर्चा हो रहे हैं? आप एक काम कीजिए ना, जवाहरलाल नेहरू को किसी ने बताया था कि सेक्रेट सेशन करो। जवाहरलाल नेहरू जवाब में कहा था कोई सेक्रेट सेशन नहीं होगी, हम खुले आम चर्चा करेंगी। ये हिम्मत आप क्यों नहीं दिखा सकते? हमारे पीएम साहब, पीएम मोदी के बाद पीएम मोदी ने 2014 के बाद से 18 बार चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की है, और हमारे बीच सन्न स्तर की वार्ता की दौर 17 बार हो चुके हैं। गलवान के बाद से चीनी आयात हिंदुस्तान में 45% का वृद्धि हुई या नहीं? आप बताओ। गलवान में हमारे 20 जवान अपने प्राण को आहुति देने के बाद चीनी के साथ हमारे ये कारोबार में इतना बढ़ोतरी कैसे आ रहा है कि 45% वृद्धि होते हैं? चीनी ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया, और
अब सही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर निकालेंगे। चीनी ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया और 3,560 भारतीय कंपनियों में चीनी निर्देशक है। आप बताइए, ये छोटे छोटे हमारे प्रश्न हैं। सर मेरा और एक बात कहना है सर, हिंदुस्तान में मैंने पहले भी कहा कि जहां 14% मुसलमान होते हैं, वहां मुसलमानों को क्यों इस तरीके की नफरत की निगाह से देखा जाते हैं। मैं ये जरूर सवाल पूछूंगा, क्योंकि सर अगर खुशवंत सिंह जी, हमारे देश की एक जाने माने पत्रकार खुशवंत सिंह जी, उनका कहना है इंडियन फ्रीडम इज रिटन इन मुस्लिम ब्लड सिंस their participation in the freedom struggle was much more in proportion to their small percentage of the population। अगर हम सही बताओगे, आप कहेंगे कि हम मुसलमानों को चापलूसी करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इतिहास की गवाह देना चाहते हैं। आप इतिहास को विरूपण करते हैं, इतिहास को छेड़छाड़ करते हैं, आप हमारे स्थिति लोप करने की हर संभव प्रयास करते हैं, एक एमनेशिया तैयार करना चाहते हैं, हाँ को ना को हाँ करना चाहते हैं, नई हिंदुस्तान की बात करते हैं। नई हिंदुस्तान में अगर सबसे जोखिम में अगर कुछ है, वो है हमारा अधिकार। हिंदुस्तान में सबसे जोखिम हालत में है हमारा अधिकार। ये हमारे अधिकार को छीन लिया जाता है। हमें कर्तव्य सिखाए जाते हैं, लेकिन कर्तव्य के पहले हमारा अधिकार क्या है ये तो बता दीजिए। हमारा बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, मीडिया वालों को यहाँ से निकाल दिया जाते हैं, मीडिया वालों को यहाँ से निकाल दिया जाते हैं। ये मीडिया हमारे फोर्थ पिलर होते हैं, मीडिया वालों को घुस से नहीं दिया जाता। क्यों आप मीडिया को डरते हैं? क्यों हमारे न्यायालय पे दबाव बनाते हैं? न्यायालय के खिलाफ कभी कानून मंत्री, कभी हमारे उपराष्ट्रपति जिस तरीके से बयान देते हैं, ये हमारे देश की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को खतरा पहुंचाते हैं। हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारा देश का बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म है। ओके, हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर धन्यवाद राइट्स है। हमारा देश का बेसिक स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। इसमें खतरा पहुंचाने की कोशिश मत करो। धन्यवाद। 30 मिनट हो गए। धन्यवाद। बोलेंगे सर, 30 मिनट हो गए। सर अगर आप मौका दें, सारे बात क्लियर करने दें। नहीं, कोई मौका नहीं। आज कुछ बचा के नहीं रखूंगा। इनकी बात क्लियर करनी भी नहीं है, आप तो आपकी बात। सर आज कुछ बचा के नहीं रखूंगा सर। आज सर मैंने ताजुब लगता है सर। देखिए, मैं खुलेआम कहता हूँ, अदानी जी के साथ हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, अंबानी के साथ हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम भी चाहते हैं हिंदुस्तान में और तरक्की हो और इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हो। हमारे इस सिस्टम पे तर्क है। थैंक यू। ये सिस्टम के खिलाफ हमारा इल्जाम। दिलीप सेकिया जी, सामने से टैगोर की और किसी के रविन्द्रनाथ जी को सिखाने के रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, बोल दो। मैं सर बांग्ला में कहूंगा, इंग्लिश तर्जुमा भी करने का मौका दीजिए। बांग्ला में पढ़ूंगा, इंग्लिश तर्जुमा करने का मौका दीजिए। बंगाला ट्रांसलेट। হেমোর চিত্ত পূর্ণ তীর্থ জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে, কত মানুষের ধারা দুর্বাসতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা। হেতায় আর্য, হেতা অনার্য, হেতায় দ্রাবিড় চীন, সখুন্দল মোগল পাঠান এক দেহ হলো রে। পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার, সেটা হতে আছে কত উপহার। দেবে আর নেবে, মিলিবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। सर मैंने तर्जुमा कर रहा हूं सर, तर्जुमा सुन लीजिए। माई हार्ट awake in this holy land of India. It is a place of pilgrimage for nations to mingle in a confluence of humanity. Nobody knows who asked them, yet they came from different lands and marched in a single body. The Aryans, the non-Aryans, the Dravidians, the Chinese, the Scythians, the Huns, the Pathans and Mughals, all of them like so many separate streams flowing irresistibly to loss
at the end of their journeys, their individual identities in one vast sea. Now the West has opened its gate. All are collecting its prize gifts, and the same irreversible process of mutual exchange and assimilation is taking place once again in that holy confluence of humanity. तो हमारा देश 4 वेद 18 उपनिषद 2 महाकाव्यों की देश है। हमारा देश शंकराचार्य की है। हमारा देश पुराण बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब का देश है। हमारा देश नामदेव तुकाराम की देश है। हमारा देश गुरु नानक और भाई मर्दाना की देश है। सर हमारा देश बुद्ध और ऋषि ऋषभ देव की देश है। हमारा देश चेन्नैया और बसवपन्ना की देश है। हमारा देश कबीर चैतन्य की देश है। हमारा देश निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती का देश है। ये देश को बचा के रखिए, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।